rendering happens and how the Android work, how that render a UI and all. So, and then we will try to conclude our session and try to, try to get something like which we can implement in our code, like how to reduce our overdraw, how to reduce rendering time, right? So we will work on that thing. Or yeah, so that's it's all session all about. So yeah, so agenda is pretty much simple, like GPU overdraw, GPU rendering. This is the agenda. Guys, my is my screen is sharing, right? Yes, Manish. Yes, yes. Yeah, Ankit, please start recording. Yeah, I already have. Okay, cool. So yeah, then basically we will try to try to learn about, okay, how to improve our app performance, right? So yeah. So first of all, we will go very basic part. So we have a good understanding about, how GPU rendering happen in Android, right? So for that you should have a clear idea about how the view life cycle is going on, right? So on attach window, when on attach of your activity and system calls, then basically view is getting attached, and then basically your measure, then on measure, then basically layout, then on layout, then dispatcher draw, then draw, and then on draw your visible layouts comes, right? That thing happens when you are basically calling the invalidate. Then basically it's called the throw wala function. It's come to that wala position, right? And when you call a request layout, so it's basically go to the measure, then layout, and then basically draw, right? So these callbacks are going to execute it after that. So that is a pretty much. So please keep in mind, basically how invalidate is coming, like invalidate comes, it's basically called a draw function, right? But request layout is calling basically on measure, on layout, and on draw, right? So these callbacks, right? So please keep in mind that thing, and then we will go. Yeah. Okay, so let's start with the, okay, how UI rendering happen in the basically our Android device. So first of all, हम हमारे यहाँ पे एक vsync होता है, that will call. Then basically there is a three parts. One is a your UI thread, other is your rendering thread, and other is your graphic thread. रेंडरिंग थ्रेड, देयर इज अ वन थिंग यू कीप इन माइंड कि रेंडरिंग थ्रेड वाला काम पहले जीपीयू के अंदर होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर. बट लेकिन बीच में जब भी 2020 सॉरी लॉलीपॉप वर्जन आया, उसके ऊपर एक और थ्रेड बनाया गया, दैट इज अ रेंडरिंग थ्रेड, राइट? सो या, तो और इसका इसका मेनली काम एनिमेशन वगैरह, बफर वगैरह को स्टोर करना, राइट? कैलकुलेशन वगैरह, ये सब चीजें, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो जैसे में, उन सब चीजों को भी करना इसके अंदर आता था. जैसे इन एनिमेशन सेशन भी नो अबाउट कि जो कैलकुलेशन होता है मॉर्फ पाथ एंड ऑल का, तो एसबीजी वाला, वो बेसिकली रेंडर थ्रेड में होता था इन 25 के अबव के या 21 के अबव के. या तो आई एम थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट 25 और 21, उसके बाद ही रेंडर थ्रेड इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? सो या, सो बेसिकली यूआई थ्रेड के अंदर बेसिकली आपका इनपुट देखा जाता है कि व्हिच काइंड ऑफ इनपुट यू आर, लाइक आपने टच इवेंट का कौन सा इनपुट, यानी कि ऑन स्क्रॉल, बेसिकली सॉरी आप स्क्रॉल कर रहे हो कि ऑन मूव वाले में हो, या फिर टैप किया है, डाउन किया है, अप किया है, राइट? which kind of event you are generating, then that's in input. Then animation kind of thing, whatever is happening like translation and any other thing, वो बेसिकली यहाँ पे होता है. देन आपका मेजर होता है, लेआउट होता है, ड्रॉ होता है, सिंक होता है. ये सब कुछ आपके यूआई थ्रेड में हो रहा होता है. जो आपका रेंडर थ्रेड होता है उसके अंदर बेसिकली सिंक, एग्जीक्यूट, गेट बफर, इशू एंड स्वैप बफर एंड ऑल, ये जो चीजें होती है इधर हो रही थी. अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे आगे चलते चलते सेशन के. Then get buffer, then swipe buffer, and then your composite. So yeah, so so let's have a small example. Let's suppose कि आपके पास एक ये व्यू है जिसको आप एक रिसाइकलर व्यू के लिस्ट में शो करवा रहे हैं, राइट? और इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक वो रिपल इफेक्ट वाला जो एनिमेशन है वो होता है. तो व्यू हेड की जो इसका होगा वो कुछ इस तरह से होगा
कि ये आपका मेन होगा, आपका कंटेनर, ये जो होगा ये होगा मेन कंटेंट व्यू आपका ये है, राइट। और ये बेसिकली जो आपको एंड्रॉइड दे रखा है, राइट। तो दैट इज जो भी है लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट एंड द एक्शन बार वो कन्वर्ट हो जाता है टूल बार एंड ऑल। सो वो अलग है, सो वी फोकस ऑन दैट वाला पार्ट, राइट। सो या, तो अभी अगर लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे मैंने टैप किया, और टैप करते ही वहां पे बेसिकली ड्रॉ हो रहा है, तो वो किस तरह से ड्रॉ हो रहा होगा, राइट। तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा होगा, राइट, कि जैसे हमने टैप किया तो टैप करते ही एक इनपुट आया, जो इनपुट है बेसिकली कि आपने टैप किया है, यानी कि डाउन किया है, राइट, फिंगर डाउन किया है, राइट। तो वो कॉल बैक आएगा, वो कॉल बैक जाएगा उस कॉल बैक के पास। वो कॉल बैक बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो बोल रहा होगा कि यार लेट सपोज आपने आइटम नंबर 2 पे किया है, राइट। तो आइटम नंबर 2 जो होगा, वो वहां से एक इनवैलिडेट को कॉल कर देगा, ठीक है। और ये बेसिकली अपने चाइल्ड इनवैलिडेट्स को कॉल कर रहा होगा, राइट, कि अपने चाइल्ड इनवैलिडेट्स को कॉल कर रहा होगा, राइट, कि ये भी अपने चाइल्ड इनवैलिडेट को कॉल करेगा। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है व्यू हायरार्की में, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इसको नहीं पता कि क्या चेंज हुआ है, बट हाँ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, राइट। देन बेसिकली क्या होता है कि देन जैसे ही चाइल्ड टॉप के ऊपर जाता है, देन वहां से एक शेड्यूल एक ट्राइवर्सल शेड्यूलर आता है, जो कि आपके नेटिव लैंग्वेज जावा में ही कर रखा होता है, जिस जिस जो बेसिकली वापस वापस रिट्रैक करता है ट्री को, और वहां पे उस पोजीशन पे जाता है जहां पे बेसिकली चेंजेस करने हैं, राइट। और वहां पे रीड्रॉ फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, जो कि आपके मेन यूआई थ्रेड में हो रहा होता है। तो बेसिकली इसके अंदर वही बेसिकली रिवर्स यानी कि बैक ट्रैकिंग, और वो यानी कि फिर उस ट्रैक करके उस पोजीशन पे लाने वाला काम हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि दो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है। वन इज और ग्रीन वाला जो पार्ट है आपका डॉट डॉट के, वो बेसिकली आपके जो ये आपका जो यूआई थ्रेड है, सॉरी, जो आपका सॉरी जो आपका रेंडर थ्रेड है उसके बारे में बता रहा है, और जो जो ये वाला है ये बेसिकली आपका मेन थ्रेड के बारे में बता रहा है। तो मेन थ्रेड में बेसिकली आपके कैलकुलेशन होता है कि कहाँ पे चेंजेस हुए, राइट। उसको बेसिकली एक बैक ट्रैक में स्टोर करके रखता है, फिर उसको ट्रैक करके फिर वहां पे आता है, वहां पे आकर के फिर वो रेंडर थ्रेड के अंदर बेसिकली उसके अंदर जो भी आपके कलर के चेंजेस जो भी करने हैं, वो सारे चेंजेस को करके उस आइटम को बेसिकली रिप्लेस करके और फिर नया फ्रेम को बनाया जाता है, और वो फ्रेम को बेसिकली आपके पास एग्जीक्यूट करके फिर आपको शो किया जाता है। तो दैट इज ऑल द प्रोसेस जो कि हो रहा होता है, राइट। देन या, सो देन बेसिकली आपका एक सिंक का होता है, जो कि बेसिकली या जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बेसिकली एक ट्रैक करके रखा रहता है एक लिस्ट को, और उस लिस्ट को फिर हम बैक ट्रैक करके आते हैं, और फिर उसको बेसिकली हम वहां पे शो करवा रहे होते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, राइट। यानी किस तरह से दिखना चाहिए। देन बेसिकली हम यानी कि जीपीयू कैलकुलेशन होते हैं, जीपीयू कैलकुलेशन वगैरह करके देन फिर इसको लिस्ट को हम शो करवा रहे होते हैं। तो दैट इज द थिंग जो कि हो रहा होता है, राइट। Okay. This is the small idea about कि जब हम कैसे, अगर हम थोड़ा सा एनिमेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही होती है, राइट। सिस्टम लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही होती है, राइट। अदर थिंग इज दैट कि थोड़ा सा हम और भी डीपर डाइव करते हैं, ताकि हमें यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि बेसिकली जब भी व्यू के ऊपर कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो इनवैलिडेट को कॉल हो रहा होता है, देन वो रीड्रॉ कर रहा होता है उसको, और तब वो जाकर के एग्जीक्यूट हो रहा होता है, राइट। तो ये तो इनवैलिडेट, क्योंकि एज मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो व्यू की लाइफ साइकिल थी उसके अंदर इनवैलिडेट जब भी कॉल होता है तो बेसिकली ऑन ड्रॉ फंक्शन आपका कॉल हो रहा था। तो ये तो सिंपल सा, कोई अगर आपने लेट सपोज बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया, ये सब चीज चेंज किया, तो वो इस तरह का परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। अदरवाइज लेट सपोज कि अगर अगर ऐसा होता है कि हमने इस लिस्ट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने की कोशिश की, राइट, देन किस तरह के परफॉर्म हो रहे होंगे, किस तरह के यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा और अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में पता चलेगा, राइट, कि सिस्टम और किस तरह से चीजों को परफॉर्म करता है, राइट। ओके, सो लेट सपोज आपने जैसे ही ऊपर की तरफ आइटम को स्क्रॉल किया, तो आइटम को स्क्रॉल करते ही आपका लेट सपोज यहाँ पे लिस्ट आइटम 5th तक आपको विजिबल है, तो वो लिस्ट आइटम 6th तक आपको विजिबल हो जाएगा, राइट। तो लिस्ट आइटम 6th आपको ऊपर दिखेगा, और अपडेटेड व्यू बेसिकली आपको दिखेगा कि आइटम 1 दिखेगा, और फिर आइटम 0 जो होगा वो इनविजिबल व्यू में हो जाएगा, वो दिख नहीं रहा होगा, या फिर वो स्क्रिप्ट, राइट। देन बेसिकली क्या हो रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपका इनपुट जाएगा, राइट। सबसे पहले इनपुट रिकॉर्ड होगा,
इनपुट को रिकॉर्ड किया गया। इनपुट में सबसे पहले आपने टैप डाउन किया होगा, राइट? टैप डाउन करते ही उसने बेसिकली आपका जो ऑन टच लिसनर होगा उसके अंदर बेसिकली टैप अप टैप डाउन का जो मेथड होता है, टैप डाउन वाला मेथड होगा कॉल। उसके अंदर कुछ नहीं होता है, बोल रहा है अच्छा टैप डाउन क्या है, ठीक है कोई नहीं, कुछ डेटा नहीं है इसके ऊपर, कुछ परफॉर्म नहीं करवाना, ओके राइट, गो अहेड। देन बेसिकली आपने जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो ऑन मूव कॉल हो गया। ऑन मूव कॉल होते ही जो मूव वाला जो इवेंट है वो कॉल होगा, और वो इवेंट जैसे कॉल होगा तो वो बेसिकली आपका ऑफसेट कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितना ज्यादा स्क्रॉल किया, राइट? देन जैसे ही आपने स्क्रॉल किया तो अब यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो हम रीड्रो करवाए, सारे सारे ही आइटम्स को रीड्रो करवा रहे होंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम वहां पे एनिमेशन करवा दे, राइट? तो एनिमेशन, कौन से एनिमेशन? तो अल्फा, जो भी आप अल्फा करवाना चाहते हो, अल्फा ट्रांसलेशन करवाना चाहते हो ट्रांसलेशन, रोटेशन करवाना चाहते हो रोटेशन, इस तरह के एनिमेशन करवा दे। तो जो जो जैसे में अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसलेशन वाला एनिमेशन रिसाइकलर भी करवा रहा होता है, वो ऊपर की तरफ ट्रांसलेट करवा रहा होता है आपके लिस्ट आइटम को, राइट? ऊपर की तरफ वो ट्रांसलेट करवाता है, क्योंकि रीड रो वाला जो ऑपरेशन होता है वो बहुत यानी कि वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, उसके अंदर फिर आपको जैंकीनेस दिखेगा यूआई के अंदर। तो जैंकीनेस को हटाने के लिए वो बेसिकली ट्रांसलेशन ऊपर की तरफ करवा रहे होते हैं उस व्यू का, और ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर उसके बाद उसके नीचे ही तुरंत ही वो कॉल कर रहे होते हैं ऐड व्यू को। ऐड व्यू को क्यों कॉल कर रहे होते हैं कि आपको नीचे का भी व्यू दिखाना होता है, राइट, उनको। तो वो उसके लिए बेसिकली वो ऐड व्यू को कॉल कर रहे होते हैं। तो ऐड व्यू बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऐड व्यू बेसिकली आपके बैकग्राउंड में जाकर के, और वो बेसिकली वो यानी ऐड व्यू बेसिकली वो कॉल कर रहा होता है रिक्वेस्ट ऑन लेआउट को। अब रिक्वेस्ट ऑन लेआउट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ऑन लेआउट ऑन यूजर को कॉल करेगा, फिर वो आपके ऑन लेआउट को कॉल करेगा, फिर उसकी पोजीशनिंग देखेगा कि वो पोजीशन किस तरह से करना है, उसे कहाँ पे रखना है, राइट? और देन बेसिकली उस व्यू को लेकर के, यानी कि एक रिसाइकलर व्यू से एक फिर से व्यू होल्डर, यानी कि उसको व्यू को लेकर के और फिर इसके ऊपर चिपका देगा, राइट? और चिपका करके आपको दिखा देगा कि अच्छा चलो ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल भी हो रहा है और ये भी चीज हो रहा है, राइट? तो बेसिकली एक ही व्यू को ऐड करना होता है, एक ही व्यू ड्रॉ हो रहा होता है, अगला व्यू जो होता है वो ड्रॉ नहीं हो रहा होता, राइट? तो ये बेसिकली फायदा होता है। अदरवाइज आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे कि आप बेसिकली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, सारे व्यू को रीड्रॉ कर रहे हैं कि एक एक सेकंड पे रीड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बहुत जैंकीनेस दिखाता है यूआई की। तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए ये काम किया जाता है कि ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेट किया जाता है ऊपर की तरफ, राइट? देन जैसे ही ऊपर के ट्रांसलेट होता है तो फिर वो बेसिकली सारा ही कैलकुलेशन वगैरह हो करके, रेंडर थ्रेड वगैरह से सिंक वगैरह हो करके, और वो आपको चीजें दिख जाती है। और आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस क्या हो रहा था। प्रोसेस सिंपल सा हो रहा था कि जैसे ही आपको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो ऐड व्यू होता है उसके लिए बेसिकली आपको रिक्वेस्ट लेआउट को कॉल किया जाता है, और रिक्वेस्ट लेआउट बेसिकली मेजर करता है, फिर लेआउटिंग करता है उसकी कि उसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। देन पोजीशनिंग होने के बाद फिर उसकी व्यू की रीड्रो करके आपको बेसिकली चिपका देता है लास्ट वाले आइटम को, राइट? तो ये बेसिकली हो रहा होता है आपके जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, राइट? तो ये रेंडरिंग का इस तरह की चीजें हो रही होती है अंदर। ओके, सो या सो यानी कि वही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया कि जब जैसे आप ऊपर की तरफ करते हैं तो एक्शन मूव हुआ, देन आपका ऐड व्यू हुआ, और ऐड व्यू बेसिकली आपको रिक्वेस्ट लेआउट को कॉल कर रहा होता है। और रिक्वेस्ट लेआउट कुछ नहीं, आपके आइटम को बेसिकली नीचे की तरफ चिपकाने का काम करता है, मतलब अपडेटेड जो व्यू होता है उसको बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो कभी कभी आप देख रहे होंगे कि जब आप बहुत तेजी से कर देते हैं अपने यानी कि स्क्रीन को स्क्रॉल, तो वो बहुत तेजी से हो रहा होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें यानी कि जैंकीनेस थोड़ी थोड़ी कभी कभी दिख जाती है, कभी कभी जैंकीनेस दिख जाती है। तो वो इसी तरह से होता है। या फिर अभी तो हमारा सिस्टम, हमारा जो डिवाइस है वो बहुत ज्यादा यानी कि परफॉर्मेंट है, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास, तो वो जैंकीनेस नहीं दिखता है। बट हाँ, अगर आप बहुत सारे ओल्ड डिवाइसेस में जाइएगा तो वहां पे जैंकीनेस दिख जाएगा, राइट? तो वहां पे थोड़ी सी जंकीनेस आपको दिख जाएगी उस चीज की, तो आप समझ पाइएगा किस तरह से वो चीजें होती है। अदरवाइज आप इसको स्लो डाउन करके आप चीजों को ग्रैप कर सकते हैं कि किस तरह से चीजें ड्रॉ हो रही होंगी, राइट? या गाइस, सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? इफ एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। या हाँ, मतलब मैं ज्यादा स्क्रॉल कर दूंगा तो पूरे ही रीड्रो ही होंगे ना? या इफ जब आप ज्यादा स्क्रॉल कर देते हैं पूरा, तो वो बेसिकली ट्रांसलेशन कर रहा होता है यूआई, राइट? और वो बेसिकली नीचे वाले चीजों को रीड्रो कर रहा होता है।
बट वही है कि वो यानी कि क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत फास्ट है तो हम बहुत ही फास्ट हो रहा होता है, तो वो चीजें हमें दिख नहीं रहती कि रीड रो के बीच में जो जैंकीनेस होती है कि जो जो लैग है वो दिख नहीं रहा होता, राइट। बट लेकिन जब जब आप लोअर सिस्टम में कीजिएगा जिसके लेट्स सपोज कि जिसका रैम बहुत कम हो, राइट, यानी कि आपके नहीं, लोअर लोअर वो डिवाइसेस तो है। समझ गए, हाँ। पर वो हम्म, सपोज जब यूजर स्क्रॉल कर रहा है तो ऑन स्क्रॉल चालू है, तब हम्म। वो मेजर करके रीड्रॉ करेगा कि मेरा स्क्रॉल खत्म हो जाएगा फिर ही हम्म। वो रीड्रॉ करेगा? नहीं, जैसे ही आप स्क्रॉल ऊपर की तरफ करते हैं तो वो ऑफसेट निकाल करके देन ही व्हाट ही डू कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग वाला जो आपका यानी कि जो जो विजिबल व्यूज है उसको बेसिकली ट्रांसलेट करवा रहा होता है ऊपर की तरफ, राइट। और उसी के साथ साथ में कंकरेंट में एक काम और हो रहा होता है जो कि बेसिकली ऐड व्यू को कॉल कर रहा होता है कि ऐड व्यू यानी कि उस लेआउट के अंदर किस पोजीशन पे किस व्यू को ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए मीजर और ड्रॉ वगैरह हो रहा होता है, राइट। हाँ, पर सपोज मेरे पास अभी लेआउट के अंदर 5 दिख रहा है, 5 आइटम दिख रही है, राइट। मैंने हम्म। ज्यादा स्क्रॉल कर दिया और मुझे हम्म। 5 से सीधा 30 आ गया मेरा। तो हम्म। वो मेरे अभी जो मैं स्क्रॉल बंद कर दूंगा तो 30 से 35 दिखेंगे, राइट। तो यप यप। जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा तब भी वो ऐड करता ही जाएगा सभी चीज की नहीं? जब मैं स्क्रॉल बंद कर दूंगा तब 31 से 35 वाला ही ऐड होगा? नहीं, तो वो बेसिकली स्क्रॉल वो नहीं करता जाएगा। इसका इसके लिए बेसिकली आपको रिसाइकलर व्यू के अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा। उसके अंदर बेसिकली स्क्रैप्ड व्यू और उसके अंदर आपका जब जब आप बहुत तेजी से स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यानी कि वो बेसिकली एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कुछ हो रहा होता है उसके अंदर, यानी कि वो आपको एक बार देखना पड़ेगा रिसाइकलर व्यू के अंदर कि वो किस तरह से काम करता है, राइट। यानी कि हाँ, इसमें सिंपल स्क्रॉलिंग की बात मैंने की है, राइट, अभी। या ओके ओके, समझ गया, समझ गया, ओके, ओके। डन। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ओके। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। या सो अब लेट्स टॉक अबाउट कि जीपीयू रेंडरिंग कैसे काम करता है, राइट। और जीपीयू रेंडरिंग कैसे काम कर रहा होता है और आपके ऐप के परफॉर्मेंस को हम किस तरह से यानी कि जीपीयू रेंडरिंग से हम अपने अपने ऐप के परफॉर्मेंस को कैसे रिव्यू कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ऐप को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज द थिंग। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक छोटा, हाँ, ओके। सो फिर यहाँ पे सिंपल सा चीज है, आपको एक जीपीयू इनेबल यानी कि रेंडरिंग ग्राफ मिलता है जो कि आपको बेसिकली इनेबल करना होता है, राइट। और उसको इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यानी कि जो भी एप्स है उनके जीपीयू रेंडरिंग को आप प्रोफाइल करते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि किस तरह से जीपीयू पे रेंडर हो रहा है चीजें, यानी कि चीजें रेंडर हो रही है और किस तरह से कितना टाइम लग रहा है, राइट, रेंडर होने में। और कितना ज्यादा वेट टाइम लग रहा है या फिर कितना ज्यादा रीड्रॉ होने में टाइम लग रहा है, कस्टम व्यूज को ड्रॉ होने में कितने टाइम लग रहे हैं, राइट। आप हर एक जो मेजर होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो ये हर एक चीज को आप बार के थ्रू देख सकते हैं। तो फॉर दैट आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि सेटिंग में जाना है, डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करने हैं, देन आपको बेसिकली आप अगर आपका डिवाइस लेट्स सपोज 21 या 21 के नीचे है तो उसके लिए बेसिकली वहां पे प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग करके होगा। अदरवाइज अगर आपका डिवाइस 21 से ऊपर है देन वहां पे होगा प्रोफाइल HWUI रेंडरिंग करके होगा, राइट। देन बेसिकली वहां पे जाकर के आप स्क्रीन बार्स आपके इनेबल हो जाएंगे हर एक स्क्रीन के लिए, जो कि आपके फ्रेम रेट के हिसाब से दिखा रहा होता है कि हर एक फ्रेम को लोड होने में कितना टाइम लगा इन मिली सेकेंड। और वो बेसिकली आपको शो हो रहा होता है आपके यानी कि उस ऐप के ऊपर, राइट। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ तो ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा, राइट। यप। सो आपको कुछ नहीं करना, आप लेट सपोज यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने ओके इस जीपी ओवर सॉरी यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। और ये यहाँ पे आ गया और
सिर्फ आपको इसको बार को ऑन कर देना है, राइट। अब यू कैन सी कि आपके बेसिकली रेंडर होने में ये ग्राफ्स के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि किस फ्रेम को रेंडर होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। और ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, राइट। ये जो रेड वाला ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन वाला दैट इज शोइंग कि 15 मिलीसेकंड के अंदर अंदर, यानी कि 16 एफपीएस पे 16 एफपीएस के अंदर अंदर बेसिकली स्क्रीन जो है वो रेंडर हो रहा है, राइट। और बार के ऊपर जो आपके अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं उसके भी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस को भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, राइट। और फिर जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला गया तो इस लाइक की यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि उसमें टाइम लग रहा है, रेंडर होने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा है अभी के समय। जैसे मैं ऊपर की तरफ चला गया तो ये जैसे ये रिपल इफेक्ट वाला जो एनिमेशन है, ये देखो ये बहुत ज्यादा रेंडर होने में टाइम ले रहा है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करने होते हैं, राइट। तो वो चीजें वो वहां पे हो सकता है कुछ कुछ जगह पे आपके फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हो, राइट। तो वो चीजें आप देख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि इसका हर एक कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, कोई सा भी ऐप को ओपन कीजिए। लेट्स सपोज हम लिंक्डइन को ओपन कर देते हैं, राइट। सी तो लिंक्डइन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेसिकली हर एक फ्रेम को ड्रॉ होने में किस तरह से टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, राइट। यू कैन फिगर दिस आउट। अब हम थोड़ा सा ग्राफ को रीड करना सीख लेते हैं कि ये ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, राइट। सो वी हैव अ गुड ग्रेट आइडिया कि किस तरह से हम आगे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके सो सो नेक्स्ट इज बेसिकली कि रीड कैसे करना है ग्राफ को। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे स्वैप बफर भी, यानी कि सिंक वगैरह हो रहा होता है, ड्रॉ हो रहा होता है, मेजर हो रहा होता है, एनिमेशन वगैरह के इनपुट्स ले रहे होते हैं, एनिमेशन की हैंडलिंग वगैरह हो रही होती है। तो वो हर एक चीज को कितना कितना टाइम लग रहा है, वो बेसिकली आपका ये जो कंपोनेंट है, जैसे ये ऑरेंज वाला कंपोनेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रिप्रेजेंटिंग की आपके जीपीयू सीपीयू जो है वो वेट कर रहा है कि आपका जीपीयू का काम है वो कंप्लीट हो, राइट। जीपीयू का काम कंप्लीट हो, वो बेसिकली कलर वगैरह जो भी ड्रॉ वगैरह करना है, ये सब चीजें वो सब बता दे। और उसकी कैलकुलेशन वगैरह जो भी है यानी सीपीयू करके दे चुका है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि वो सब करके दे मुझे, ठीक है ना। बफर क्यू के अंदर बफर क्यू बेसिकली क्या कर रहा होता है, बफर क्यू आपका बेसिकली यानी कि एक क्यू है जो कि बेसिकली कुछ कुछ जीपीयू को काम करना है, तो उसको जीपीयू को दिया है उसने काम करने के लिए, और फिर उसके लिए वेट कर रहा है कि वो काम कर करके मुझे मिलेगा, राइट। और जैसे उसको वो काम मिल जाता है देन वो आगे की तरफ शेड्यूल हो जाता है, सिंकिंग वगैरह के ऊपर चला जाता है, राइट। देन बेसिकली देन आपका जो लेट्स सपोज जो कोई ओपन जीएल वगैरह करता है या फिर 3D एनिमेशन टाइप की चीजें कुछ कर रहा है लेट्स सपोज, तो उसके लिए जो बेसिकली चीज यानी कि 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन चीजें हो रही होती है, तो उसके लिए बेसिकली रेड या फिर 2D रेंडरिंग वगैरह हो रही होती है, हाइट वगैरह ये सब चीजें मेजर हो जो भी हो रही है, उसके लिए बेसिकली रेड वाला आपका हो रहा होता है। रेड वाले से वो शो हो रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको। देन सिंक अप अपलोडिंग ड्रॉ, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, राइट। देन ऑन मेजर और ऑन लेआउट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ऑन मेजर ऑन लेआउट बेसिकली कॉल हो रहा होता है। तो जब भी आप देखिएगा कि जब भी आप रिसाइक्लर व्यू को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो इसके अंदर ए, एक, ये तो सी जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो राइट यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला एरिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसको थोड़ा सा मेजर करने में, लेआउटिंग करने में और इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट। और सी ग्रीन वाला एरिया इसी चीज को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एनिमेशन को बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन एनिमेशन कर रहे होते हैं हम एग्जिस्टिंग व्यू के विजुअल व्यूज के साथ। और एक व्यू ऐड होने वाला होता है नीचे, उसके लिए बेसिकली हम लेआउटिंग, मेजरमेंट वगैरह ये सब चीजें कर रहे होते हैं। तो सी कितना ज्यादा टाइम उसके लिए लग रहा होता है, राइट। तो वो इसको शो कर रहा होता है, राइट। या देन बेसिकली मिसलीनियस डिले वगैरह होता है, जिसमें बेसिकली हम यूआई
बेसिकली ड्रॉ वगैरह हो रहा होता है, या फिर अंदर में बहुत जैसे कि अभी एक फ्रेंड ने बताया कि जब जब हम बहुत ज्यादा तेजी से स्क्रॉल कर देंगे तब किस तरह से काम कर रहा होगा, तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसके अंदर बेसिकली रिसाइकलर रीड्रॉ कर रहा होगा, या फिर वो सारे व्यूज को स्क्रैप रिव्यू में डाल दिया तो उसको टाइम लग रहा है, राइट। तो उन टाइम्स को बेसिकली इस कलर के से डोनेट किया जाता है, राइट, डिनोट किया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट इज बेसिकली कि हमारा लेट सपोज कि एपीआई यानी कि हमारा बिटवीन 4 से लेके 5 के बीच में है हमारा एपीआई लेवल, तो उसके अंदर थोड़ा सा बार जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट। इस तरह का आपको बार नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह का आपको बार दिख रहा होगा। अगर अगर 5 से ऊपर यानी 21 से ऊपर एपीआई लेवल से ऊपर अगर आपका डिवाइस है, देन आपको बार जो है वो कुछ ऊपर वाला जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, राइट, जो कि मेरे डिवाइस में आपको दिख रहा है। अदरवाइज आपका 14 से लेकर के 21 के बीच में है तो आपको बार्स कुछ इसी कलर के दिख रहे होंगे, और उसका सिंपल सा वही है कि प्रोसेस का के डिनोट किया गया है वो आपके ऑरेंज से, देन एग्जीक्यूट, देन आपका जो भी ये है ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में ही लिखे हुए, राइट। या देन नेक्स्ट इज दैट कि रीड ओके, जो हम ग्राफ है उसको थोड़ा सा किस तरह से रीड करें, तो बेसिकली यहाँ पे दो यानी कि हॉरिजॉन्टली यानी कि 2-3 लाइंस है, रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन, और आपका जो भी रेड ग्रीन, और फिर एक बीच में ये थोड़ा सा मेरे को तो वैसा दिख रहा है येलो कलर का। सो ये 3 तरह के लाइन है, वो 3 तरह के लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ है कि जो आपका जो ग्रीन वाला लाइन होता है वो बेसिकली 16 एफपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि 16 एफपीएस के अंदर आपके स्क्रीन जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 16 एफपीएस से अगर थोड़ा सा अगर लेट सपोज ज्यादा हो जाता है तो उस केस में थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स आपके हो रहे होते हैं, तो वो एनिमेशन वगैरह जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय पे हम देख रहे होते हैं कि हमारे 16 एफपीएस पे के अंदर अंदर वो एनिमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है देन वी मूव टू कि हमें थोड़ा सा कुछ अलग अप्रोच ट्राई करना चाहिए, राइट। सो फ्रेम ड्रॉप्स कम हो, राइट। तो वो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर और मैक्सिमम जो चीज सिंपल कंपोनेंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो सब चीजें 16 एफपीएस के नीचे ही आपको दिखाई देंगे, बट हाँ कुछ जगह पे आपको बेसिकली कुछ फ्रेम्स जो हो गए वो ड्रॉप होते हुए दिख रहे होंगे, राइट। उसके अंदर हो सकता है नेटवर्किंग कॉल वगैरह में टाइम लग रहा हो, उधर से डेटा आ नहीं रहा, उसके कारण रेंडर नहीं कर पा रहे हो, राइट। जैसे रिसाइकलर व्यू में हो रहा है, कुछ बार्स आपको बहुत ऊपर दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो वो उस तरह से चीजें हो सकती है, राइट। तो उन चीजों के लिए आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, वो इंटरनेट स्पीड और मेनी थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। सो या तो दैट इज ऑल अबाउट या नेक्स्ट इज बेसिकली हाउ टू इम्प्रूव अवर जीपीयू रेंडरिंग, राइट। तो जीपीयू रेंडरिंग को इम्प्रूव करने का सिंपल सा वे है कि सबसे पहले तो आप अपने जो व्यू हायरार्की है उसको बहुत फ्लैटन कीजिए, क्योंकि फ्लैट करने से चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि अगर जब भी आप व्यू हायरार्की को अगर फ्लैट नहीं करते हैं तो आपको लेआउटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है, राइट। चीजों लेआउट करने पे, फिर उसको मेजर करने पे, तो इन चीज और फिर उसका यानी कि बैक ट्रैकिंग कर रहे हो, जब व्यू हायरार्की बन रहा होता है तो उसके अंदर बेसिकली बैक ट्रैकिंग करने और इन सब चीजों में भी टाइम लग रहा होता है। तो उसको दैट इज रिकमेंडेड कि बेसिकली अपने हम व्यू हायरार्की को बेसिकली फ्लैटन करें। फ्लैटन इन द सेंस कि एक लेआउट है और उसके नीचे हमने सारे व्यूज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर रखा, राइट। अब हम एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट की नेस्टिंग वगैरह जब हम करने लग जाएंगे तो वहां पे व्यू हायरार्की जो होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग रहा होगा, और जब व्यू हायरार्की कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा तो उस केस में मेजरमेंट और लेआउटिंग वगैरह में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होगा, राइट। तो वो चीजें उस चीजों से बचने के लिए आप फ्लैटन कर सकते हैं, जिससे आपकी जीपीयू रेंडरिंग जो है वो और अच्छी हो सकती है। देन आप क्या कर सकते हैं, मेक कस्टम व्यूज। अब जैसे में अगर लेट सपोज कि कुछ व्यूज है जो कि जिसके अंदर क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट व्यू या फिर इमेज व्यू या फिर जो भी हमें जो एंड्रॉइड के थ्रू जो व्यूज मिले हुए उनको जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कोड लिख रखे होते हैं, और उसके अंदर में भी हो सकता है कि व्यू हायरार्की 2 या 3 लेयर्स की हायरार्की अंदर अंदर हो रखी हो, राइट। तो वो अगर लेट सपोज हमारे यूज केस बहुत ही सिंपलर है तो हम सिंपल यूज केस के लिए सिंपल कस्टम व्यूज बना सकते हैं। हाँ बट इट्स ऑब्वियसली टाइम टेकिंग, तो मैक्सिमम पीपल इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, राइट। और दूसरा चीज ये भी है कि पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज कि हमारे पास बहुत पावरफुल डिवाइस है अभी,
अभी के समय यानी कि इतने पावरफुल डिवाइस है कि एक स्मार्ट टूथब्रश जो होता है उसकी जितनी प्रोसेसिंग पावर होती है उस प्रोसेसिंग पावर पे अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, और लाइक और वो स्पेस से हमें इतना सारा डेटा भेज रहा था, राइट। और अभी हमारे पास एक स्मार्ट टूथब्रश के अंदर जो है इतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर राइट मिल रखा है। तो हमारा मोबाइल फोन तो बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, राइट। तो ये चीजें हमें नोटिस भी नहीं हो रही थी, बहुत ही फास्ट हो रही होती, राइट। अगर 30 FPS पे भी चीजें हो रही है तो हमें दिख नहीं रहा होता, राइट। यानी कि 30 बोल रहा हूँ, यानी कि मतलब अगर लेट सपोज मतलब 5 FPS अगर चीजों पे भी हो रही है तो हमें हमें मतलब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, राइट। तो ठीक है, तो वो चीजें यानी कि वही है कि आपको कितना ज्यादा एफिशिएंट बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ ये चीजें कुछ है जो हम कर सकते हैं, राइट। देन हम लेस यूज करें अल्फा को, या व्हाट इज अल्फा। तो हम अल्फा के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हर एक पिक्सल है वो ड्रॉ हो रहा होता है, और हर एक पिक्सल जो होता है यानी कि हर एक कलर को पिक्सल परफेक्ट बनाने के लिए किस तरह से RGB एंड ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन एंड्रॉइड। तो वो चीजें भी अभी हम आगे देखेंगे। ओके, next is basically by making a balance between the user experience and the awesome looking UIs. So yeah, तो nowadays यानी कि हम बहुत सारे आई कैचिंग UIs को बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग हो, राइट। और उसके लिए फिर हम GPU रेंडरिंग और GPU ओवरड्रो इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम बोलते हैं कि बस ये चीजें बननी चाहिए, राइट, दिखनी चाहिए इस तरह की। बट हाँ, हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, राइट। तो यूजर एक्सपीरियंस और जो ऑसम लुकिंग यूआईज है उनके बीच में थोड़ा सा एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो वो बैलेंस को हमें बनाना चाहिए, और वो व्हेन यू सिट विद द डिजाइनर देन tell him whenever you think like they are using lot more lotty things, lot more GIF thing in their inside their inside their app. So tell him ki, go for the let's suppose go for the SVG animation, go for the custom animations, right. Don't यानी कि don't put lot more lot more bulky things inside your UI, right. वो चीजें ना रखे, तो उससे आपकी ऐप की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होगी, राइट। then basically very important thing that is a basically complex layout को यूज यानी कि लेआउट को यूज करने के क्या तरीके होने चाहिए, राइट। अभी के समय हमारे पास बहुत सारे लेआउट है, फ्रेम लेआउट है हमारे पास, लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो कौन से लेआउट को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और कब देना चाहिए, राइट। तो हमें जब भी हमें कभी भी कोई भी एक्सएमएल बनाने का आता है तो हम हमारे दिमाग में तीन चीजें यानी कि दिमाग में एक चीज घूमनी चाहिए, वो है बेसिकली कि सबसे पहले सिंपलर लेआउट से हम चीजों को बनाने की कोशिश करें। अगर उससे बन जा रहा है तो डोंट गो फॉर द बिगर वन, राइट, बिकॉज दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सॉल्विंग द बिगर प्रॉब्लम, राइट। तो और उसके लिए बेसिकली उसके अंदर लेआउटिंग वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कि कितना व्यू किस स्पेस में आया, किस स्पेस में कौन सा व्यू आया। तो जैसे ही आप आगे की तरफ जाते जाएंगे तो वो और कॉम्प्लेक्स बनाते गए हैं लेआउट को, और उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए गए अंदर में जिस जो कि टाइम टेकिंग होता है, राइट। तो सिंपल व्यू बनाने के लिए सिंपली अगर कुछ बनाना है मुझे जो कि सेंटर में एक इमेज व्यू को रखना है, तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट लेआउट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं फ्रेम लेआउट से बना दूं बाई ग्रेविटी वगैरह को सेट करके, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले फ्रेम लेआउट से चीजों को बनाने की कोशिश करें। अगर आपको 2 या 3 या 4 लेवल की नेस्टिंग अगर करके जब रिक्वायर व्यू मिल रहा है, रिक्वायर यूआई मिल रहा है, तो उस केस में अगर 2 लेवल की नेस्टिंग हो रही है या फिर हाँ 2 लेवल की अगर नेस्टिंग हो रही है, 3 लेवल की नेस्टिंग हो रही है, तो प्लीज शिफ्ट इनटू द लीनियर लेआउट, राइट। अगर लीनियर लेआउट्स में भी 2 लेवल की नेस्टिंग या 3 लेवल की नेस्टिंग हो रही है तो गो टू द रिलेटिव वन, राइट। अगर रिलेटिव के अंदर अगर लेट सपोज कि 1 लेवल या 2 लेवल की नेस्टिंग हो रही है तो रिलेटिव में ही रहे, कंस्ट्रेंट में ना जाए, ठीक है। 3 लेवल तक ना जाए। अगर लेट सपोज 3 लेवल से ऊपर की नेस्टिंग होने लग रही है तो गो फॉर द रिलेटिव वन, और रिलेटिव इज मेड फॉर व्हाट, फ्लैटन योर व्यू हायरार्की, राइट। तो उसके लिए ही रिलेटिव को बनाया गया, लेकिन हाँ अंदर में बहुत सारे कैलकुलेशन हो रहे थे, बहुत सारे मेजरमेंट वगैरह हो रही थी रिलेटिव में, राइट। तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करें अगर आप लीनियर फ्रेम और रिलेटिव के अंदर ही चीजों को कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज जैसे अगर लेट सपोज कि रिलेटिव में आपकी नेस्टिंग वगैरह थोड़ी सी ज्यादा होने लग रही है तो देन गो फॉर द कंस्ट्रेंट वन, राइट। या सो या गाइस, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो इससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। इफ
Any questions, guys? Any questions? I want to ask one thing. Uh, Mm-hmm. like people generally suggest कि doesn't matter what's the layout, always go with the constraint layout. Mm-hmm. So is this approach right? Like I've been advised to use constraint layout only. See, people say to use constraint layout because of they want कि view hierarchy जो है वो simple flatten हो, right? For that, people generally suggest to go for the constraint layout all the time. But that is not a good practice to do in case of you if you are making a optimize or यानी कि good basically good GPU performant UI. So उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आप उसको ना करें, राइट? अगर अगर उस केस के लिए अगर अगर आप वैसे कर रहे हैं तो वो जीपीयू परफॉर्मेंट नहीं होगा उतना ज्यादा। या अंकित, आर यू सेइंग समथिंग? Sorry for interruption, Manish. Niket, for this one, what I personally think from the people that they're saying to use the constraint layout, they wanted to know that वो जानते हैं कि that layout is going to be scalable in the future, so they try to put it as a constraint layout in the initial phase, so that it would be easier for the developer to add more views, and it will be, but like in the future they will be definitely adding more and more type of items in that layout. So generally, that kind of mindset people are give to their juniors or some other person that try to use mostly constraint layout, because in the future you may able to scale it much. So that's why, like from my personal level, that I know. Yeah, Okay. yeah, it is like that. But yeah, if you are working on the basically GPU performance and making a things GPU performance, then you should think like that. If you let's suppose if a layout have a basically यानी कि if layout you can make it by the linear layout, or it is a user in future you can scale it. Yeah, that is one of the thing you should think about, because writing the whole code at one, यानी कि जब भी आपको थोड़ा सा चेंज करना हो और होल कोड लिखना पड़े तो वो ऑब्वियसली स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट? तो वही है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको सोच करके और फिर यूज केस करना चाहिए। अगर लेट सपोज लीनियर लेआउट से हम स्केल कर सकते हैं और लेट सपोज उसको उसके जीपीयू को भी हम अच्छे से अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो गो फॉर द लीनियर लेआउट, डोंट गो फॉर द कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स सॉरी कंस्ट्रेंट लेआउट, राइट? तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही चीजें यानी कि चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। ऑब्वियसली you should take time, और बट या यू यानी कि एटलीस्ट यू हैव दैट क्वेश्चन कि कॉम्प्लेक्स यानी कि मुझे कंस्ट्रेंट यूज करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? लीनियर की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है, तो या यू शुड थिंक लाइक दैट व्हेनेवर यू आर मेकिंग द यूआई। या यू हैव दैट थिंग कि वो कितना ज्यादा स्केलेबल है एंड ऑल। या बट वो बीच में बैलेंस बनाना हमें आना चाहिए दोनों के बीच में, राइट? Okay. Okay. Yeah, anything else, guys? Any questions? Okay, okay. Yeah, so आगे बढ़ते हैं। Yeah, so next thing is a GPU overdraw. Oh, very interesting thing. GPU overdraw. Yeah. So GPU overdraw is one of the thing which tell you कि आप कितने बार एक फ्रेम को ड्रॉ कर रहे हो, राइट? एक जगह पे आप कितने बार ड्रॉ कर रहे हो, कितने लेयर ऑफ ड्राइंग आप कर रहे हो वहां पे, राइट? यानी कि रीड्रॉ कितने बार ड्रॉ 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 कॉल हो रहा है, कितने बार इनवैलिडेट कॉल हो रहा है, राइट? फॉर दैट, तो वो चीज बेसिकली आपको जीपीयू ओवरड्रो के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। तो इससे पहले थोड़ा-सा हम कलर थ्योरी को समझ लेते हैं कि एंड्रॉइड के अंदर कलर थ्योरी किस तरह से काम कर रहा होता है, राइट? तो किस तरह से फॉर्मेट्स होते हैं। वन इज़ बेसिकली एआरजीबी, जो कि 8 बिट और 8 बिट के अंदर चीज़ों को अंदर रख रहा होता है। देन अदर इज़ एआरजीबी जो कि 4 बिट के अंदर रख रहा होता है, मतलब 32 बिट्स और 61 बिट सॉरी 16 बिट। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा है ऊपर वाला देन नीचे वाला, राइट? Then other is basically RGB, that is basically 565 जो कि बेसिकली आपको 16 बिट के अंदर बेसिकली कलर को स्टोर कर रहा होता है। देन अदर इज बेसिकली अल्फा जो कि 8 बिट को ले रहा होता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को रख रहा होता है, राइट? तो जो हमारा एंड्रॉइड डिवाइस होता है वो
RGB को यूज कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट, और जो हम कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ARGB 888 48, या फिर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ARGB 44444, राइट। तो ये हम कुछ यानी कि ये 888 इज बेसिकली बिट डिनोट करता है कि अल्फा को कितने बिट के अंदर स्टोर कर रखा है और रेड को कितने कलर में स्टोर कर रखा है, राइट। तो वो इस तरह से चीजें कर रही होती है। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमें कोई एक लेट्स सपोज कोई एक स्क्रीन के ऊपर हमें कोई कुछ एरिया में कलर को अगर शो करना है, तो वो किस तरह से शो हो रहा होगा, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा एंड्रॉइड डिवाइस होता है वो बेसिकली RGB कलर को ले रहा होता है, उसके अंदर कुछ अल्फा अल्फा नहीं होता है उस समय पे, राइट। अल्फा एक अलग ही बिट होता है जो कि जा रहा होता है उसको साइड में, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या हो रहा होता है कि उसके लिए अगर अगर आपने अल्फा दिया है किसी भी कलर में अगर आपने अल्फा दे रखा है, यानी कि आप तो बेसिकली इस फॉर्मेट में कलर को पास कर रहे हो ना, ARGB कलर में, राइट। तो अगर आपने अल्फा दिया है जिस भी कलर को, तो बेसिकली सबसे पहले आपका आरजीबी जा करके ड्रॉ हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि भैया आरजीबी को ड्रॉ कर दो। देन बेसिकली अल्फा के लिए वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, यानी कि मास्किंग कर रहा होता है व्हाइट कलर के साथ, या फिर कोई भी व्हाइट कलर के साथ जनरली मास्क करता है, क्योंकि हमारा विंडो कलर जो होता है व्हाइट होता है, राइट। तो व्हाइट कलर के साथ वो मास्क कर रहा होता है उस कलर को, और फिर वो पर्टिकुलर उस कलर पे पहुंचने की कोशिश करता है जिस कलर की आपने अल्फा दे रखी है, राइट। या फिर बैकग्राउंड आपने जिस कलर का दे रखा है उस कलर के साथ उसको मास्क कर रहा होता है वो। तो वो मास्किंग के लिए जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कलर को जब भी दें तो आरजीबी फॉर्मेट में दें, ना कि एआरजीबी फॉर्मेट में दें। एआरजीबी फॉर्मेट में जब भी आप कलर को दे रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है जो कि अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है कि इस कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, राइट। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल अबाउट कि आपका बैकग्राउंड कितना दिखना चाहिए, राइट। तो या तो वो उसके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो रहा होता है, तो इसीलिए जनरली अल्फा को कम से कम कोशिश करें कलर के अंदर देने की, और आप कलर को उस बैकग्राउंड कलर के साथ मास्क करके और फिर आप एक कलर का हैश कोड जनरेट करके, और वो हैश कोड आप बेसिकली दे सकते हैं, जो कि जनरली हर एक डिजाइनर अभी के समय करते हैं। बट इफ योर इन योर टीम, इफ डिजाइनर इज यूजिंग की अल्फा कलर देते हैं और वो अल्फा को यूज करने के लिए बोलते हैं कि 30% अल्फा या 20% अल्फा दो, तो टेल हिम कि वो ज़्यादा परफॉर्मेंट नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, और डिवाइस यानी कि आपकी आपकी ऐप ऐप की जो परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस कर रहा होगा, राइट? तो वो चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करें। या नेक्स्ट इज़ दैट कि थोड़ा-सा, हाँ, या सो मैं विंडो कलर के बारे में बताने वाला था। सो 2 तरह के विंडो कलर्स हैं हमारे पास। वन इज़ आवर बेसिकली व्हाइट विंडो एंड अदर इज़ ब्लैक विंडो। ब्लैक विंडो कब आता है, जब आप डार्क मोड में ऐप को कन्वर्ट कर देते हैं, तो जनरली जो आपका एक्टिविटी विंडो कलर होता है वो बेसिकली ब्लैक हो जाता है, अदरवाइज़ वो व्हाइट रहता है, राइट? या सो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों मैंने आपको पहले बता दिया। या नेक्स्ट इज़ दैट कि व्हाट इज़ जीपीयू ओवरड्रॉ। सो अब हम जीपीयू ओवरड्रॉ के बारे में थोड़ा-सा अब जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पहले बता दिया कि एक जगह पे लेट्स सपोज़ आपने कुछ ड्रॉ किया, उसके ऊपर कितने बार रीड्रॉ करना पड़ रहा है, मतलब कितने बार उसके ऊपर उसी कैनवास के ऊपर ड्राइंग हो रही है, राइट? तो वो चीज़ को बेसिकली यानी कि कितने लेयर ऑफ रीड्रॉ हो रहा है उसके ऊपर, दैट इज़ ऑल अबाउट कि जीपीयू ड्रॉ या ओवरड्रॉ, मतलब बहुत बार ड्रॉ हो गया, राइट? नेक्स्ट इज़ बेसिकली हाउ टू फाइंड जीपीयू ओवरड्रॉ इन आवर ऐप। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हाउ टू डिटेक्ट कि इश्यू कौन से कंपोनेंट से आ रहा है, राइट? कौन से कंपोनेंट के अंदर कहाँ पे हमने कुछ गलती कर रखा है, उसको कैसे डिटेक्ट करें। देन अदर थिंग इज़ दैट कि हाउ टू रिड्यूस जीपीयू ओवरड्रॉ, राइट? तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हम मेनली बात कर रहे होंगे इसके आगे। या सो अ, सो सबसे पहले कि हाउ टू फाइंड जीपीयू ओवरड्रॉ। तो जीपीयू ओवरड्रॉ को फाइंड करने का एकदम सिंपल वे है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल से ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जो भी आपको जीपीयू ओवरड्रॉ देखना है। नेक्स्ट इज़ गो टू द डेवलपर ऑप्शन, वहाँ पे जाकर के जीपीयू ओवरड्रॉ को आप सर्च करें। डीपीयू ओवरड्रॉ या फिर सी शो ओवरड्रॉ, और वहाँ पे जाकर के शो ओवरड्रॉ एरिया उसको सर्च करें, और यानी कि सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करते ही आप जिस भी ऐप को देखना चाहते हैं उस ऐप को ओपन करें, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेट्स लेट मी सो या सो यहाँ पे गया, पहले इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। हुँ,
या तो यहाँ पे हम जीपीयू ओवरड्रो पे जाएँगे और यहाँ पे हम लोग शो जीपीयू ओवरड्रो एरिया कर देंगे। अब सी इफ यू कैन सी कि यहाँ पे अलग-अलग कलर्स के एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि कहाँ पे कितने लेयर ऑफ ओवरड्रो को यानी कि ड्राइंग हो रही है, राइट? तो लेट्स सपोज कि लेट्स गो टू द लिंक्डइन, तो वहाँ पे देखते हैं। तो सी यहाँ पे कुछ रेड रेड सा दिख रहा है, देन हम चलते हैं इधर, तो इधर में कुछ ब्लू है, देन कुछ ग्रीन है, राइट? तो हर एक कंपोनेंट को ये बता रहा है कि कौन सा कंपोनेंट बेसिकली हमारा कितना ज्यादा ओवरड्रो को जनरेट कर रहा है, राइट? तो यू कैन सी दैट, या सो या कुछ इस तरह से चीजें दिख रही है, राइट? ओके, लेट्स रीड कि इस इन इन कलर को कैसे पढ़े। सो फॉर एग्जांपल कि कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि रियल कलर ही दिखाई देता है, वो कलर चेंज नहीं हो रहा होता है, तो वहां पे कोई ओवरड्रो नहीं हो रहा है, वो विंडो कलर और वो कलर बिल्कुल सेम है, राइट? तो वहां पे कोई ओवरड्रो नहीं कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज दैट कि ब्लू कलर जो है वो बेसिकली वो बेसिकली बता रहा होता है कि एक बार वहां पे ओवरड्रो किया गया है उस प्लेस पे। ग्रीन कलर 2 टाइम्स ओवरड्रो, पिंक कलर 3 टाइम्स ओवरड्रो एंड द रेड कलर की 4 और मोर टाइम्स जो है वहाँ पे ओवरड्रो हुआ है, राइट? तो जनरली कहा जाता है कि इफ योर ऐप इज इन अ ग्रीन एरिया दैट इज वेरी गुड, या कि आपका पूरा ऐप के अंदर सिर्फ ग्रीन ही ओवरड्रो अगर आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड। इफ पिंक इज कम तो इट्स अ यानी कि ओके ओके वाला कंडीशन, गुड कंडीशन। इफ कम रेड वाला एरिया और लॉट मोर प्लेसेस आर कमिंग रेड, राइट? तो उस केस में थोड़ा सा आपको जीपी ओवरड्रॉ पे आपको इस ऐप के ऊपर काम करना चाहिए फॉर इंप्रूविंग योर जीपी ओवरड्रॉ। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अभी भी लो एंड डिवाइसेस यानी कि देयर इज अ 2 to 3% ऑफ लो एंड डिवाइसेस, राइट? तो उन डिवाइसेस के अंदर हो सकता है कि आपका ऐप का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो, तो उसके लिए आप कर सकते हैं उसके ऊपर काम। अदरवाइज इफ योर बिजनेस लॉजिक इज नॉट टेलिंग कि डू दैट, यानी कि बिजनेस जो है वो माइंडसेट नहीं कहता कि भाई नहीं, इसको तो हम करना ही पड़ेगा, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर यूज़फुल है। तो डोंट डू go with that. But yeah, for the GPU point of view, GPU performance point of view, you should be into the green area or the pink वाला एरिया। अदरवाइज रेड वाला एरिया बहुत ज्यादा है, तो आपको काम करना चाहिए अपने जीपीयू ओवरड्रो के ऊपर, राइट? या नेक्स्ट इज दैट कि अब हम कैसे डिटेक्ट करें कि हमारा जीपीयू ओवरड्रो है कैसे। तो फॉर दैट आई हैव मेक वन सिंपल ऐप। इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि फ्रेम लेआउट लिया है, उसके अंदर बेसिकली मैंने लीनियर लेआउट लिया, उसको टॉप से 200, देन टॉप से 400, देन टॉप से आपको 600 दे रखा, राइट? और सबके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ बैकग्राउंड दे रखा, राइट? अब लेट्स सपोज अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये टॉप से इतना ड्रॉ हो रहा है, फिर नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा है, राइट? तो ये पूरा यानी कि ये कह सकते हैं कि अब हम बेसिकली पता कैसे करें कि भैया इसका जीपीयू ओवरड्रॉ बहुत खराब है। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर मैं इस ऐप को खोलूँ, तो सी देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन वाला एरिया आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे 1 बार ओवरड्रॉ हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है और यहाँ पे 4 बार हो रहा है, यहाँ पे ओवरड्रॉ, राइट? इस वाले यानी कि नीचे वाले प्लेस पे, राइट? तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब हम जीपीयू ओवरड्रॉ को दूर कैसे करें यहाँ पे, मतलब कैसे आइडिया निकालें, राइट? कि कैसे चीज़ों को हम हटा सकते हैं, राइट? तो या फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम सिंपल सा ये इंस्पेक्ट को कॉल कर सकते हैं, राइट? और इस लेआउट इंस्पेक्ट और इट विल, या अब इसने बेसिकली हमारे जो भी ऐप के अंदर यूआई था उसको यहाँ पर रेंडर कर चुका है, राइट? देन बेसिकली आपको इसके ऊपर 3D मॉडल पे क्लिक करना है और देन आपको लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, राइट? नाउ यू कैन सी कि हर एक लेयर जो है वो बेसिकली कितना बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा है, राइट? तो सी ये फ्रेम लेआउट है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई बैकग्राउंड नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ कलर नहीं दिख रहा। देन मेरा जो लीनियर लेआउट है, उसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड चिपका रखा है, राइट? एफ एंड एफ जो भी है। नेक्स्ट एक और लीनियर लेआउट है जिसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड चिपका रखा है। देन यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है जिसके ऊपर बैकग्राउंड चिपका रखा है और यहाँ पे भी एक लीनियर लेआउट है जिसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड चिपका रखा है, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये पूरा यहाँ पे नीचे की साइड तो ये पूरा इससे हाइड हो जा रहा है, इस वाले लीनियर लेआउट से, इसके नीचे वाला एरिया और इसके ऊपर वाला एरिया को ही बैकग्राउंड दिखाने की ज़रूरत है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कुछ हाइट दे सकता हूँ, फिक्स हाइट, राइट?
कि लेट्स सपोज कि ये वाला लीनियर लेआउट है, राइट? अब ये लीनियर लेआउट कितना विजिबल होगा, जितना टॉप से डिस्टेंस इसका है, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी हाइट को ही 200 डीपी दे देते हैं, राइट? 200 डीपी। देन ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बेसिकली टॉप से कितना है? तो टॉप से ये है 400, राइट? तो 400 है, तो बेसिकली 200 ही होगा इसका भी एरिया, राइट? तो इसको भी हम 200 दे देते हैं। 200 ही हाइट होना चाहिए इसका, राइट? 200 हाइट होगा तो बेसिकली ये इतने इतने दूर में ही राइट आएगा, राइट? ये नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, तो ये बेसिकली रीड्रॉ नहीं हो रहा होगा नीचे। नेक्स्ट इसके अंदर भी देखें तो ये भी 200 दे सकते हैं इसको। देन ये वाले नीचे वाले एरिया को इसके नीचे जा रहा है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट? अब हम इस ऐप को रन करते हैं। ओके, लेट्स वेट फ्यू मिनट्स। Okay, it's taking lot more time. Yeah, now it's get launched. Yeah, so now you can see कि बेसिकली जो हमारा जीपीयू ओवरड्रो अब के समय बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, राइट? यहाँ पे सब कुछ ग्रीन यानी कि सॉरी आपका नीला-नीला हो रखा है, मतलब ब्लू हो रखा है, राइट? सो ब्लू होने से वी कैन सी कि अब हमारे पास सिर्फ 1 लेयर ऑफ जीपीयू ओवरड्रो ही है पूरे ऐप के अंदर, राइट? यानी कि इस स्क्रीन के अंदर, राइट? सो इस तरह से आप जीपीयू ओवरड्रो को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू मेक दैट कैची माइंड कि किस तरह से कहाँ पे काम कर रहा है और हमारा बिज़नेस लॉजिक को ज़्यादा इम्पैक्ट किए हुए बिना हम किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि अब किस तरह से यूआई दिख रहा है, राइट? सी अब चीज़ें यानी कि यूआई इज़ सेम जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा है। बट हाँ, जीपीयू ओवरड्रो इज़ इम्प्रूव्ड। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिस तरह से आप जीपीयू ओवरड्रो को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। या लेट्स गो फॉर द कि आगे हम और क्या कर सकते हैं, राइट? हुँ, यप। So next is that कि how to improve GPU overdraw. So there is some tips and tricks to improve your GPU overdraw. Remove unnecessary background from view and layout. Right. Make your app theme as the window theme color. Yeah. तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड हम रिमूव करके हम अपने लेआउट के अंदर और बेसिकली व्यूज के अंदर बैकग्राउंड को अगर रिमूव कर दे तो उससे अननेसेसरी बैकग्राउंड जो है उनको रिमूव करके हम बेसिकली अपने जीपीयू ओवरड्रो को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? देन अदर थिंग इज दैट कि विंडो कलर का ही थीम रखे हम अपने ऐप कलर का, राइट? तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो गूगल के ऐप्स होते हैं उनका थीम कलर व्हाइट होता है, ज्यादातर व्हाइट होता है, राइट? तो व्हाइट कलर को वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसको ऑब्वियसली जीपीयू ओवरड्रो उनका रिड्यूस हो रहा था उससे। अगर आप लिंक्डइन को भी देखें तो वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के ऊपर होता है, राइट? तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि जीपीयू ओवरड्रो को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होता है, राइट? तो अच्छे अच्छे जो ऐप्स होते हैं उनकी बेसिकली जीपीयू ओवरड्रो को वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके रखना चाहते हैं और उसके लिए बेसिकली वो क्या करते हैं कि अपने विंडो कलर और इस कलर को दोनों को मैच करके रखते हैं थीम कलर में, राइट? तो उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। यूज़ लेस कलर चेंजिंग एनिमेशन लाइक रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट को थोड़ा-सा कम यूज़ करें क्योंकि उसके अंदर अल्फा भी हो रहा होता है, राइट? मास्किंग भी हो रही होती है, राइट? और देन बेसिकली कलर भी चेंज हो रहा होता है। तो इस तरह के जो बैकग्राउंड चेंजिंग एनिमेशन होते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंजिंग एनिमेशन होता है, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करें इफ अवॉइडेबल। अदरवाइज़ इफ नॉट देन यू कैन यूज़ इट या अ, क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 या 2 बार क्लिक हो रहा होता है, तभी वो कलर चेंज हो रहा होता है उसका, राइट? तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। मेक अ कस्टम व्यू बाय एक्साइड बाय एक्सटेंडिंग अ व्यू क्लास। सो व्यू क्लास से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि व्यू क्लास से जब हम एक्सटेंड करके अगर हम कस्टम व्यू बना रहे हैं, तो हम बहुत ही बेसिक क्लास को एक्सटेंड करके बना रहे हैं वहाँ से। सो हमारा कस्टम व्यू जो होगा वो
किसी और पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा। व्यू हेरिडिटी के अंदर ज़्यादा सिर्फ़ हम व्यू पे ही डिपेंडेंट हो रहे होंगे, जो कि बहुत फंडामेंटल क्लास है, राइट? तो वहाँ से एक्सटेंड करके अगर हम कस्टम व्यू बनाते हैं और उसके ऊपर हम बेसिकली अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह से चीज़ें, अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड हम कस्टम व्यू बनाते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि हमारा जो हमारा जीपीयू ओवरफ्लो हो वो अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू कोई दूसरे का बनाया हुआ एक एक जनरल लाइब्रेरी को यूज़ करके हम अगर बना रहे हैं, राइट? use less alpha dependency color into your Android app. So alpha dependency को थोड़ा सा कम रखें, डिपेंडेंट कलर को कम रखें, राइट? ट्राई टू यूज कि वो मास्क करके और वो कलर मिल जाए, तो वो वाला कलर को यूज करें, अल्फा अल्फा को ना रखें, राइट? मेक योर ऐप थीम बेस्ड ऑन द विंडो कलर ऐप, या सेम वही दोबारा लिख दिया मैंने, सॉरी। Yeah. Next is that there's a few references. You can go and check this out. One is basically Mindoc के कुछ इसके ऊपर है रेफरेंसेस, उसको चेक कर सकते हैं। आपको जीपीयू ओवरफ्लो के ऊपर और जीपीयू रेंडरिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा गूगल आईओ का एक टॉक है, उसको आप देख सकते हैं, राइट? आई ऑल्सो गेट फ्रॉम देयर। डीप एनालिसिस एक है जो कि गूगल के थ्रू दिया गया है, राइट? सो यू कैन चेक दैट आउट कि इंस्पेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, लेआउट इंस्पेक्टर को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, राइट? यू कैन चेक दैट आउट। और वन माय ओन ब्लॉग जो कि आप मीडियम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। यू कैन चेक आउट दिस ब्लॉग रिटन बाय मी। सो या यू कैन चेक दिस आउट कि इसके अंदर बेसिकली आपको जीपीयू ओवरफ्लो को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अ, जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग इज दैट, yeah, thank you guys, thank you for the coming to this session. And this is yani ki, my GitHub and LinkedIn profile where you can reach me out. And there is a Telegram link where you can go and basically ask questions. There is a Telegram community for Android developers, so you can go and ask any question if you have Android related any issues you have, so you can go and ask. We all people here to help you out. Yeah, so that is yeah, thank you so much guys. Yeah, any question guys? Ankit, can you stop recording?